عمران خان کی گرفتاری پہ اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں اس وقت کرائمز رپورٹر لاہور ہم چلتے ہیں اور ان سے پتہ کریں گے کہ یہ واقعہ کب ہوا اور کیا رد عمل ہے، اور اس وقت عمران خان کہاں ہیں۔ جی بتائیے گا، کیا دیکھ رہے ہیں لاہور میں یا پاکستان میں اس گرفتاری پہ رد عمل؟ جی توشہ خانہ کیس میں ہمایوں بابر جو ہے انہوں نے آج فیصلہ سنایا ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں انہوں نے گلٹی قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کارروائی کی گئی ہے کہ ان کو 3 سال قید اور 2 لاکھ کا جرمانہ اور 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد عدالت نے حکم دیا تھا کہ آپ انہیں گرفتار کریں، جس کے بعد لاہور زمان پارک سے ان کی رہائش گاہ کے باہر سے جو پولیس تھی انہوں نے تقریباً کوئی 1:30-2 بجے کے قریب تمام رستوں کو بند کر کے تو ان کو حراست میں لیا۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ان کو ملریا جو ہے وہ ہوائی جہاز ان کو شفٹ کیا جائے گا، اس لیے ایک پلین جو ہے وہ اسلام آباد سے لاہور کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم عمران خان صاحب کو لے کے جا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ۔ اس سے پہلے یہ معلومات آئی تھی کہ شاید ان کو لے کے کوٹ لکھپت جیل میں شفٹ کیا جا رہا ہے، تو لیکن وہ ایئرپورٹ پہ جانے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ موسمی خرابی کی وجہ سے کہ موسم ٹھیک نہیں ہے، بارش کا موسم ہے، تو اس لیے جو ہے وہ پرواز لاہور پہ نہیں آئے گی۔ تو عمران خان صاحب کو بائی روڈ جو ہے وہ ذریعہ موٹر وے اسلام آباد شفٹ کیا جائے گا اڈیالہ جیل میں۔ تو اس کے بعد یہ قافلہ جو ہے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو اب یہ تقریباً اسلام آباد تو قریب راول بلی کے پاس پہنچ چکا ہے۔ تو وہاں پر جو انتظامات ہیں اڈیالہ جیل میں وہ تانے مکمل کر لیے گئے ہیں اور سادہ کپڑوں میں پولیس اہلکار جیل کے اطراف میں لگا دیے گئے ہیں۔ تو ابھی وہ کچھ دیر تک وہ جو ہے قافلہ جو یہاں سے روانہ ہوا تھا وہ اڈیالہ جیل پہنچ جائے گا، جہاں پر عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور لاہور کے اندر جو حالات تھے اس کے بعد جیسے ہی یہ فیصلہ آیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ الزام ثابت ہو گیا توشہ خانہ کے حوالہ سے، تو اس کے بعد کنٹرولمنٹ ایریا کے اندر جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری اور فوج کی جو نفری تھی وہ تعینات کر دی گئی، اور چیک پوسٹوں کے اوپر بغیر کسی غیر متعلقہ شخص کو کینٹ میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کے شناختی کارڈ وغیرہ اور ڈاٹا چیک کیا گیا، تو کوئی ایسا بندہ جو کینٹ کا رہنے والا ہی نہیں ہے یا کینٹ سے کہاں جا رہا ہے اس کو وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ تو تاحال ابھی سیکورٹی کے تمام حالات جو ہیں وہ اسی طرح الرٹ ہے۔ تو کوئی ایسا مظاہرہ یا کوئی ایسی حرکت کسی بھی افراد کی طرف سے سامنے نہیں آئی۔ پولیس کو اور انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت تمام جگہوں پہ موجود ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی مزاحمت ہوتی ہے تو اس کا فوری جواب دیا جائے۔ تو بہرحال ابھی تک کوئی ایسی مزاحمت سامنے نہیں آئی۔ تو عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے مطابق 1 لاکھ روپے ان کو جرمانہ ہے، 5 سال کے لیے نااہل ہو چکے ہیں اور 3 سال قید ہے۔ اور جج جو تھے ہمایوں دلاور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو جبکہ جو وکیل ہیں ان کے عمران خان صاحب کی، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بہت جلدی میں فیصلہ کیا گیا ہے، ہم اس کے خلاف ہے، اس طرح کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو بڑے بڑے رات سے سنتے۔ تو فیصلے پر ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے تھے جج صاحب کی طرف سے، تو پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ زبانی حکومت تو گرفتاری نہیں عمل میں آ سکتی، یہ کچھ تحفظات سے جو کہ وکیل شعیب شہین صاحب کی طرف سے پیش کیے گئے تھے۔ تو انہوں نے پھر ایک نیوز کانفرنس کی جس میں یہ بتایا کہ جی جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں وہ فیئر چانس نہیں مل سکا، جس کے مطابق ہم یہ کہیں کہ ہمیں فیئر چانس ملا تھا اور ہم اس کی گرفتاری کے اوپر ٹرائل دے سکیں یا اسے بات کر سکیں۔ تو لاسٹ انہوں نے یہی بتایا ہے کہ فیصلے پر ابھی جج صاحب جو ہے انہوں نے ہمایوں دلاور نے سائن نہیں کیے تھے، لیکن ان کے سائن کرنے سے پہلے ہی پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا۔ تو اس معاملات میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پولیس پہلے ہی سے تمام معاملات میں تیار تھی اور ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ کام ہونا ہے، اس لیے انہوں نے تمام اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہوا تھا اور اسی کے اوپر عمل کیا ہے، اور باقی ان کو اسی بات کو عمل کرتے ہوئے ان کو فوری طور پہ اسلام آباد شفٹ کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ تو آرمی افسران بھی دیکھے گئے ہیں اکا دکا، یا ذرائع کہتے ہیں کہ اخباری رپورٹر ان کے پاس سے کوئی رپورٹ نکلی ہے، کوئی بات؟ کیا بتاتے ہیں تمہارا اخباری رپورٹر؟ آرمی افسران سے بھی کسی نے کوئی بات کی ہے، یا وہ بھی آرمی افسران بھی اس میں کچھ حرکت میں؟ جی
जिस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की गई है तो वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई, कोई गाड़ी वाला, कोई मीडिया पर्सन, किसी बंदे को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी। अच्छा बाकायदा तौर पे एसपी सिविल लाइन जो थे जावेद भट्टी वो वहां पर मौजूद थे, एसपी सीआई लियाकत मलिक जो गाड़ी में, जिसकी गाड़ी में बैठ के उनको शिफ्ट किया गया था, वो वहां मौजूद थे। तो वहां पर मीडिया को तो जाने की इजाजत ही नहीं थी और ना ही किसी और बंदे को, लेकिन वहां पर जो पुलिस के सारा कपड़ों में एहलकार थे वो मौजूद थे, हसास अदारे के एहलकार मौजूद थे, उसमें कुछ इंटेलिजेंस के अफराद भी थे जो वहां पर मौजूद थे उस एरिया में। तो जब तक उनको वहां से शिफ्ट नहीं कर दिया गया, जमान पार्क को चारों तरफ से बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि जो गली में रहने वाले, जो साथ रहने वाले लोग हैं, उनको भी एक साइड पर बाहर आने की इजाजत नहीं थी कि जो तमाम रास्ते ज़मान पारे की तरफ जा रहे हैं उनको पहले कॉर्डन ऑफ किया गया, उसके बाद फिर अगला काम ये किया गया कि उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको लेके तो फौरी तौर पे वहां से निकल गए हैं। तो वहां पर किसी बंदे को जाने की इजाजत नहीं थी कि कोई मीडिया पर्सन वहां पर जाता या उसको देखता या उसके साथ वैसी बात करता, तो ना ही वहां पर किसी स्पोकमैन ने को बात बताई है। सिर्फ इतनी बात सामने आई है कि इमरान खान साहब को हम गिरफ्तार करने के लिए आए थे और हमने गिरफ्तार कर लिया है। हमें ये भी बात अंदर से मालूम हुई थी कि जो इमरान खान साहब की अहलिया है बुशरा बीबी, उन्होंने आगे से पुलिस के साथ मज़ाहमत भी की है वो रोकने के लिए कि आप इनको नहीं लेके जाए, लेकिन पुलिस ने बहरहाल उनको गिरफ्तार करके तो साथ ले गई। नाज़रीन, आपको अंदर की बात बताई जा रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पे उनकी अहलिया ने थोड़ी सी मज़ाहमत की है। तो इमरान खान ने खुद मज़ाहमत किया या वो आराम से चले गए हैं पुलिस के साथ? नहीं, उन्होंने कोई मुज़ाहमत नहीं की। वो पुलिस राय ने बताया कि वो आराम से साथ चले गए, गाड़ी में बैठ के, और आगे से कोई मुज़ाहमत नहीं की। हाँ, तो लेकिन जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो सादा और मेरा ख्याल है कि ब्लू वर्दी में बैठे हैं बड़े सुकून से, तो उनके साथ कोई उनका बॉडीगार्ड या कोई उनका डॉक्टर या कोई उनका वकील कोई साथ नहीं गया? कोई भी शख्स नहीं है, सिर्फ उनको गिरफ्तार किया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उनके साथ वो एसपी सीआई है लियाकत अली मलिक लियाकत उनका नाम है, वो उनके साथ बैठे हुए हैं गाड़ी में। उन्होंने वो तस्वीर जो है बात शेयर की थी कि हम वो गाड़ी में बैठे थे और इमरान खान साहब को अपनी कस्टडी में साथ लेके गए। ये सारा ऑपरेशन इस अंदाज से बड़े खामोशी से किया गया कि किसी को ये महसूस ना हो या कोई शख्स मुज़ाहमत की तरफ जा भी ना सके और सोच भी ना सके। तो कोई शख्स उनके साथ नहीं था, ना कोई वकील साथ था, ना कोई गार्ड साथ था, ना कोई वर्कर साथ था। बस वो एक खामोशी के साथ पुलिस एहलकार जब उनको चारों तरफ से कोठी को घेर दिया, उसके बाद वो उन्होंने बताया कि हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तो अब उनको भी मालूम हो चुका था कि ये मामला चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, सारा मामला चल रहा है, तो इसलिए फिर उन्होंने वहां पर अपनी गिरफ्तारी ले ली। बल्कि सोशल मीडिया पे उन्होंने एक क्लिप भी जारी किया था टिकटॉक के ऊपर, तो उसमें इमरान खान साहब कह रहे थे कि जब तक ये क्लिप आपको मिलेगा तब तक ये पुलिस मुझे गिरफ्तार कर चुकी होगी। तो मेरी इस कौम से सिर्फ ये अपील है कि मैं अपनी जात के लिए नहीं बल्कि आपके लिए लड़ रहा हूँ और मैं आपको इस गुलामी से बचाना चाहता हूँ। अब आपका फर्ज है कि आपने किस तरीके से अगला अमल करना है। मेरी जहाँ तक है, मैं ना इससे घबराता हूँ ना मुझे इससे कोई घबराहट है। मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए निकलता हूँ कि आप लोगों के ऊपर ये जो गुलामी मुसलत की गई है वो खत्म हो जाए। अब आपने इस चीज का जवाब देना है कि आप कैसे जवाब देते हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि थोड़ी सी मजम्मत की, और किस तरह की मजम्मत की होगी, क्योंकि वो तो बापर्दा खातून है, वो बाहर आ गई, उनके सामने खड़ी हो गई, जिस तरह हमारे अक्सर मुआशरे में होता है कि खवातीन दिफा करती हैं। लफ्जी तौर पे दफा होता है ना, जिस तरह एक दूसरे के साथ बहस की जाती है अच्छा। कि आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, कि आपके क्या मुहरकात है या आपके अंदर क्या ऐसी बात है। तो यही वो हमारा जिसके ऊपर रोका जा सकता है। वो बाई फोर्स नहीं उनको रोक सकती कि मैं आपको इस तरह रोकती हूँ। तो एक लफ्जी तौर पर इंसान एक दूसरे को कन्विंस करता है या कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप ऐसा ना करें या ये गलत हो रहा है या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो लफ्जी तौर पर ऊपर मुज़ाहमत होती है ये वही सामने आती है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि काफिला वहाँ जा रहा है, तो काफिले के साथ कितनी सिक्योरिटी है या किस तरह निगरानी की जा रही है, क्योंकि एक बहुत लंबा सफ़र है और उम्र भी उनकी ज़्यादा है, तो क्या देखते हैं काफिला? उनके साथ अलीद की 8 से 10 गाड़ियां हैं, उसके अलावा 2 एसपी साहबान है और इसके अलावा तकरीबन 12 से 15 पुलिस की गाड़ियां हैं जो उनके साथ अतराफ एक काफिला कॉन्वॉय बनाकर जा रही है। तो वो अब तकरीबन जो टाइम हो रहा है उसके मुताबिक तो वो पहुंच चुके होंगे, क्योंकि वो रावलपिंडी की हदूद में दाखिल हो चुके थे। तो आगे से उन्होंने फिर वहां से सीधा इनको अडियाला जेल की तरफ लेके जाना था, जहाँ पर उसके आने से पहले ही उनकी गिरफ्तारी के तमाम
जो है वो इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए थे। तो अब तो थोड़ी देर तक रिपोर्ट इंशाल्लाह मिल जाएगी कि वो अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। तो एक कॉन्वॉय था जिसके साथ उनको लाहौर से लेके निकले थे। अच्छा, तो ये बताइएगा कि क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं और मशहूर शख्सियत हैं, तो अगर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता लाहौर में या बनी गाला में तो ये बेहतर नहीं था? क्या कहते हैं ज़रा? लेकिन जो केसेस जिस तरह की एक ट्रायल केसेस चलते हैं, ये जो एलिगेशन लगती है उसके मुताबिक तो ये तो फैसला जो है नजरबंदी का वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है या वो मुतलका जो जुडिशरी है वो कर सकती है। तो जो इनके ऊपर एलिगेशन लगी थी कि इन्होंने एक जाली स्टाम्प पेपर जो है वो जमा करवाया था जिसके ऊपर वो जाली सारा रिकॉर्ड दिया था, तो उसके मुताबिक जो एलिगेशन लगी है उसके जवाब में जो सजा बनती है उसके मुताबिक जाहिर साहब ने तो यही फैसला सुनाया कि 5 साल के लिए इनको नाअहल करार दिया गया और 3 साल की सजा दी जाती है और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अगर ये 1 लाख रुपया नहीं अदा करते तो मजीद 6 महीने इनको सजा मजीद भुगतनी पड़ेगी। तो 12 क्योंकि ये शख्सियत है, आपको ये तो हुकूमत ही बेहतर जानती है कि उनको कौन सी बरात पुलिस स्टेशन वो अडयाला जेल में दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नजर में ये एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। ये जो वाकयात हुए थे भाई, ये जो इस वक्त इनको कोर्ट कमांडर हाउस में हमला किया था और ये बाकी इलाके को आग जलाई थी, सारा काम किया था, तो उस वाकयात के बाद पुलिस में और अदारों में इनके खिलाफ बहुत कम गुस्सा पाया जा रहा था। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद ऐसा कोई फिलहाल तो देखने में नहीं आ रहा कि ये साबिक वज़ीर आज़म है तो इनको कोई सहूलतें दी जाएंगी या दी गई होंगी। तो ये तो अब जब गिरफ्तार होंगे तो बाकायदा तौर पर अडयाला जेल में इनको रिसीव किया जाएगा, तो फिर उसके बाद ये पता लगेगा कि क्या इनको किस कैटेगरी में रखा गया, ए क्लास में रखा गया, बी क्लास में रखा गया। तो बहरहाल अभी तक तो ये मेन काम ये था कि इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ही मुफस्सल और मुकम्मल रिपोर्ट दी आपने। हम आपसे रब्ता रखेंगे। नाजरीन, अडयाला जेल में रात गुजारेंगे इमरान खान। इमरान खान अपनी तकारीर में खिताब में कहते थे कि मैं इनके पंखे बंद करवा दूंगा, इनका एयर कंडीशनर बंद करवा दूंगा मुखालफिन का। आज वो रात अपनी अडयाला जेल में गुजारेंगे। मुकम्मल रिपोर्ट दी जा रही है और अहम खबर जो बताई गई है कि इनकी गिरफ्तारी पर इनकी बेगम ने मुज़ाहमत की है पुलिस के साथ। फिर मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे रब्ता करके और रिपोर्ट लूँगा। नसीर को इजाज़त दीजिए। नाजरीन, हमारे स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, हम आपको लम्हा ब लम्हा सारी रिपोर्ट देंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।